Good morning students. Today we are going to discuss about matrices of class 12th. Okay, this is the very third chapter of your book and today I am going to tell you something basic about matrices. What is matrix? What are the types of matrix? How do we perform different kinds of operations of matrix will be discussed in next section. Okay, so this is very basic. So starting with what is matrix, as you can see here, this is a matrix. Okay, so matrix is a rectangular array of mn numbers. ओके, रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसे हम या तो इस बिग ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर सकते हैं या फिर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी इंक्लोज कर सकते हैं. दोनों तरीकों से मैट्रिसेस को दिखाया जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर शोइंग दिस मैट्रिक्स. नाउ जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम मूव किए, दिस इज नोन एज रो. दिस इज द वेरी फर्स्ट रो, this is the second row, this one is the third row and so on. Okay, row that means horizontal way में जब हम move करते हैं, that is the row of this matrix. When we are moving down the line, that means जब हम vertical way में move करते हैं, this is known as column of the matrix. This is also the column. Okay, and so on. So this is the column of matrix when we are moving along the line vertically. And if we are moving horizontally, then it is known as row of a matrix. In general, we can describe it as small a, I, j, where I is representing number of row. किस रो में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और j क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कॉलम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, सो a, I, j is a general representation of matrix element. Fine. These all are the elements of matrix. ये जो मैंने A11, A12 लिख रखा है, these all are the elements of matrix. और इस complete matrix को हमने किससे दिखाया है, capital A से, because usually we denote a matrix with capital letter. Fine. अब इस matrix की order कितनी है, this is m cross n. ये order क्या होता है, order that means इसमें number of rows कितने हैं and number of columns कितने हैं. This is known as its order. जब हम उसके number of rows को number of columns से cross के sign के साथ दिखाते हैं, this is known as its order. Okay, so यहाँ पे हम already देख रहे हैं, this one is the first row, second row, third row, and we are moving so on to the mth row. ये last row is the mth row. So m is the number of rows here. Again ये first column थी, second column थी, थर्ड कॉलम आई और इस तरीके से हम लास्ट कॉलम पे कहाँ पहुंचे, nth कॉलम पे. सो n इज द नंबर ऑफ कॉलम हियर. सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी m क्रॉस n. ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अभी तक तीन बातें ही देखी हमने कि जो हॉरिजॉन्टल पाथ है वहां पे रोज आ जाता है, वर्टिकल पाथ है वो कॉलम आ जाता है, और रोज और कॉलम को जब हम क्रॉस साइन के साथ दिखा देते हैं, दैट विल बिकम m क्रॉस n. फॉर एग्जांपल, इट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन या तो बिग ब्रैकेट के अंदर होता है या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है. पर in class 12th you have to use only this big bracket sign. In higher classes when you are pursuing your bachelor or master's degree, there you can see कि ये small bracket भी matrices को represent करने के लिए use होता है. Fine. So in this class you have to use this big bracket only to represent matrix. Now what are the different kinds of matrix? These are the different types of matrix what I have written here. First one is row matrix, second one column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, zero और null matrix. ये सारे matrix ही हैं. अब matrix अलग अलग तरीके के हैं तो कुछ तो difference इनके बीच में होगा. तो इनका जो difference है वो इनका name ही suggest कर रहा है हमें. ठीक है. For example, if we are talking about row matrix, यानी कि इसमें सिर्फ rows होते हैं consisting of single row. For example, 2, 3, 4. इस तरीके का कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज अ रो मैट्रिक्स बिकॉज ओनली वन रो इज हियर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, तो सिर्फ एक कॉलम होंगे यहाँ पे, 2, 3, 4. दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम, सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. नाउ मूविंग ऑन टू स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि स्क्वायर हम जानते हैं, स्क्वायर क्या होता है, हैविंग ऑल फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो m और n की वैल्यू होती है वो सेम हो जाएगी. ठीक है, यानी जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे. अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 आ रहा है,
5 आ रहा है, 9 आ रहा है एंड 2 आ रहा है. सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज यहाँ पे 2 रोज आ रहे हैं और 2 कॉलम्स भी आ रहे हैं. दीज आर द 2 रोज and these are the 2 columns. So the order of this matrix is 2 cross 2. So it is a square matrix. इसी तरीके से हम 3 cross 3, 4 cross 4 का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं. That will also be a square matrix. क्योंकि हम स्क्वायर में जानते हैं कि the length and breadth will become the same. Similarly, here number of row and number of column will become same. So it will become a square matrix. Now coming to diagonal matrix. अब diagonal क्या होता था हमारा? डायगोनल होता था कि अगर कोई भी फिगर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दिस वाज द डायगोनल. ओके, सो डायगोनल क्या होता था? जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती थी, ऐसे स्लैंटिंग लाइन, दिस वाज द डायगोनल. सेम वही रूल यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में भी आएगा. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनली रिप्रेजेंट हो रहा है 2, 8, 15, ठीक है, ये डायगोनल आया. रेस्ट ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे. So it will become a diagonal matrix. ठीक है, diagonally जो values हैं वो exist करेगी और rest all values will be 0. That will become a diagonal matrix. सिर्फ diagonally ही values exist करती हैं. Now coming to scalar matrix. Scalar matrix भी diagonal matrix की तरह ही होता है. एक difference बस इसमें यही है कि जो भी diagonal पे values आ रहे हैं वो सारे values same रहेंगे. Okay, then it will become a scalar matrix. ठीक है, scalar matrix भी diagonal matrix ही है, but the only difference is that कि diagonally जो भी values आ रही थी, for example 2 है तो 2, 2, 2, only single scalar is used here to represent the diagonal matrix. Then this diagonal matrix gets converted to scalar matrix. Diagonal matrix में क्या होता था? हम अलग-अलग values दिखा सकते हैं diagonally. बट स्केलर मैट्रिक्स में जैसे ही वो सारे अलग अलग वैल्यूज कोई एक वैल्यूज में बदल जाते हैं, इट विल बिकम अ स्केलर मैट्रिक्स. नाउ कमिंग ऑन टू यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें भी डायगोनली ही रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है, बस इसमें डायगोनली सिर्फ 1 आएगा, यूनिट आएगा, बिकॉज द नेम इज सजेस्टिंग अस रेस्ट ऑल वैल्यू विल बिकम 0. सो इट विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स. Okay, now the last one is zero or null matrix. Zero और null matrix में क्या होता है कि सारे values 0 हो जाते हैं. So it will become a zero matrix. Okay, so यहाँ तक अभी हमने देखा कि जो unit matrix होते हैं उसमें जो diagonally जो values आ रही हैं वो 1 आते हैं. Now a question arises here कि क्या सारे positive values ही हम ले सकते हैं जब हम scalar matrix की बात करें, diagonal matrix की बात करें? ऐसा नहीं है. हम अब कहीं पे भी निगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं इफ वी वांट टू डू इट. ठीक है, वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, बट द थिंग इज देयर प्लेसमेंट. रो की बात हो रही है, रो में प्लेसिंग होगी. कॉलम की बात हो रही है, कॉलम प्लेसमेंट होगी. स्क्वायर की बात हो रही है, द वैल्यू ऑफ m and n विल बी सेम. इफ डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनली वैल्यूज आने चाहिए, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. अगर हम स्केलर की बात कर रहे हैं, डायगोनली ही वैल्यू आनी चाहिए, बट ऑल वैल्यूज शुड बी सेम. अगर यहाँ -2 लेते हैं, देन ऑल वैल्यूज शुड बी -2. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट मैट्रिक्स, देन डायगोनली वैल्यूज 1 आनी चाहिए, रेस्ट ऑल वैल्यूज विल बी 0. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नल और जीरो मैट्रिक्स, देन द वैल्यू शुड बी 0. ओके, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू उसमें नहीं आएगी. नाउ अनदर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम जो वैल्यूज लेंगे वो सिर्फ 3 क्रॉस 3 में आ सकता है या फिर 2 क्रॉस 2 में ही हम दे सकते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल फॉर्म करेगा. ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 रोज ले लिए, 3 कॉलम्स आर देयर एंड 1 मोर कॉलम अगर हम यहाँ बना देते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डूइंग इट लाइक दिस, यहाँ पे मैंने 2, 3, 4 लिया, 6, 9, 2, 5, 0, 1, 3, 2, 5. अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो 3 है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने क्रिएट हो गए? 4. सो इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे क्या डायगोनल क्रिएट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है. ठीक है, दिस इज नॉट द लास्ट एलिमेंट ऑफ वर्टेक्स. तो हमें हमेशा टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम तक पहुंचना है टू मेकिंग द डायगोनल.
इस वजह से जब हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसिडर करना है, क्योंकि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल और क्रिएट हो पाता है। सो डायगोनल स्केलर को हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही दिखा सकते हैं, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स आल्सो ऑफ कोर्स। ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स कैन बी स्केलर, कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स और कैन नॉट बी, बिकॉज हम इसे कैसे भी दिखा सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैन बी देयर इन केस ऑफ जीरो और नल मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते थे, दिस इज ऑल्सो अ जीरो और नल मैट्रिक्स। फाइन, यहाँ 2 रोज आए एंड 3 कॉलम्स है, बट स्टिल इट इज अ नल मैट्रिक्स। तो इन तीनों केसेस को आपको याद रखना होगा कि इन केस ऑफ स्केलर एंड यूनिट एंड डायगोनल वी हैव टू यूज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। रेस्ट सब कुछ सेम है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मैट्रिक्स मोर इजली नाउ। मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक होता है ऑफ क्लास 12 एंड इसके बाद कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस के ऊपर विच इज क्वाइट वेरी सिंपल टू सॉल्व. Okay, so in next session I will give you few clues how to solve the questions of matrices based on different operations. So till then, take care and keep watching. Thank you so much.